लगा था in for the promoter. Copper promotes the catalytic activity during the nickel during hydrogenation of oils. In inverse process, the catalyst ion is poisoned by H2S क्योंकि H2S डालेंगे तो फिर वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी. In contact process for manufacturing H2S4, the catalyst platinum is poisoned by even traces the arsenic oxide As2O3. तो ये था पॉइजन एंड प्रोमोटर्स. द जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट के इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है. तो कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड. ओके, क्योंकि कोई रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता. इन्वॉल्व होता है तो फिर भी जितना अमाउंट में था उतना वापस आ जाता है, अनचेंज्ड. The amount of chemical composition of catalyst remains unchanged in a catalytic reaction. However, the catalyst may undergo physical change. For example, manganese dioxide, which is used as catalyst in thermal decomposition of potassium chlorate, becomes powdered during the course of reaction. Small quantity of catalyst is generally enough. In most of reaction, only a minute amount of catalyst is required. Only 1 gram of CO2 positive ions is sufficient to catalyze the oxidation of 10⁹ liters of sodium sulfide solution. तो यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में कैटलिस्ट है. In some cases, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of catalyst present. Catalyst does not alter the position of equilibrium state or reverse the reaction. Catalyst जो है वो equilibrium को fast achieve करने के लिए help करता है क्योंकि वो catalyst suggests a different path. Okay, it because catalyst increase the rate of forward or backward reaction equally. Catalysts are generally specific in their action. वो अपना काम specifically ही करते हैं. Generally, one catalyst will change the rate of only one reaction. For example, manganese dioxide catalyzes the decomposition of potassium chlorate, but not potassium perchlorate. The catalyst cannot initiate a reaction. Catalyst reaction को start नहीं कर सकता. A catalyst can change the rate of reaction which occurs even in the absence of catalyst. It cannot start a reaction. प्रोडक्ट थोड़ी ना तो वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा. द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कैन बी इंक्रीज बाय प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर्स एंड डिक्रीज बाय द पॉइजनर्स. फिजिकली होमोजेनियस एंड हेटेरोस्ट्रक्चर वाइज दो टाइप के कैटलिस्ट. तो होमोजेनियस कैटलिस्ट आर द कैटलिस्ट प्रेजेंट इन सेम फेज, जैसे कि दोनों गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है या फिर liquid state पे present. Nitric oxide catalyzes the oxidation of sulfur dioxide to the sulfur trioxide in leads the chamber process. सब गैस में present है तो same state में होगा तो होमो and different में होगा तो हेटेरो. तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन catalyze the inversion of cane sugar, तो इसे कहते हैं होमो catalysis. Next is hetero catalysis, that is यहाँ पर फॉर्म हो रहा है गैस. ओके, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और कैटलाइज यूज है वो सॉलिड है. दैट्स व्हाई व्हेन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन फेज अदर देन द रिएक्टेंट, थस इसे कहते हैं हम हेटेरो कैटालिसिस. आपको सारे एग्जांपल्स लिख के याद करो. कैटालिसिस एक्टिविटी, वी हैव सीन दैट कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाती है. पहले अनकैटालाइज्ड था वो ऐसा था, वो ज्यादा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया तो ज्यादा एनर्जी अचीव करनी पड़ती थी देन प्रोडक्ट फॉर्म. लेकिन जब से हमने कैटलिस्ट डाला तो यहाँ पर कम एनर्जी में वो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. और EA मींस एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी उसने. कम एनर्जी में भी वो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. इन दिस फिगर EA इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन एंड EA डैश इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटालाइज्ड. यहाँ पर E डैश A यहाँ पर कम है as compared to EA because the function of catalyst to reduce the activation energy. The reduction in activation energy is achieved by providing an alternate pathway to the lower energy of reaction. यहाँ पर दूसरा पाथ दिखाकर कैटलिस्ट रिएक्शन को परफॉर्म करना जो कि काम होता है कैटलिस्ट का. You can also okay enthalpy भी चेंज होती है. What we have learned here, we completed our chapter, that is the adsorption and catalysis. तो यहाँ पर उसकी जो in-text questions है सारे वो आप एक बार रिफर कर लेना, और जो टर्मिनल एक्सरसाइज है we will do together. एक बार देख लेते हैं व्हाट वी हैव. द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन आपको क्लियर हो गया. एब्जॉर्प्शन डिफरेंस क्या है दोनों में, 100% डिफरेंट आपको पूछे डिफरेंस पूछेंगे. व्हाट इज डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन.
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केमिकल ऑप्शन एंड फिजिक्स ऑप्शन, वो आपको याद रखना है। कैटलिस्ट का जो एक्टिवेशन एनर्जी को जो मेन पॉइंट्स है सारे की प्रॉपर्टीज क्या होती है कैटलिस्ट की, कैसे आपको याद रखना है टर्म्स है कि इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट पाथवे, रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो वो सारे पॉइंट्स आप याद करोगे, शांति से पूरा नोट्स बना के पढ़ोगे तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर आपको ग्रिप आ जाएगी। तो हियर वी आर कंप्लीटेड दिस चैप्टर एब्जॉर्प्शन एंड कैटालिसिस। ओके, we hear about that our body, plants and other animals are made up of many chemical substances। हमें पता है कि हमारी बॉडी जो सेल है उसमें सारे केमिकल कंपाउंड्स है। There are certain complex organic molecules which form bases of life. This builds up a living organism and are also required for their growth and maintenance। हमारी बॉडी के लिए ऐसे कंपाउंड जो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, हमारे जीने के लिए जरूरी है, वो सारे मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें आ जाता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। ओके, तो वन बाय वन हम सारे को सबको पढ़ेंगे। व्हाई टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट, ओके, हमें मिलता है राइस से, पोटैटो से। Carbohydrates form a very large group of natural occurring organic compound which plays a vital role in our day-to-day life. They are produced in plants by process of photosynthesis। photosynthesis से carbohydrates form होते हैं। The most common carbohydrates are the glucose, fructose, sucrose, starch, cellulose। Okay, chemically carbohydrates are known as polyhydroxyaldehyde or ketone। What are carbohydrates? They are polyhydroxyaldehyde or ketone or ketone or substance which give such molecules on hydrolysis। Many carbohydrates are sweet and taste of all sweet carbohydrates are called sugar। जितने भी carbohydrate sweet है, sweet taste देते हैं उसे हम कहते हैं sugar। And the chemical name of most commonly sugar are known as sucrose। और जो भी जितने भी sugar है उनका common name देते थे हम sucrose। वह कहोगे कार्बोहाइड्रेट, तो हम उसे तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तब, जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रो वाटर के साथ तोड़ते हैं, तो वो तीन ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। जैसे मोनोसैचराइड जो कि सिंगल यूनिट में टूटते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सियाल्डिहाइड और कीटोन व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू स्मॉलर अमाउंट। दिस फॉर्म्स अ ग्रुप नोन एज मोनोसैचराइड्स। About 20 monosaccharides occurs in nature and the glucose is among them। जो हमारा ग्लूकोज हो गया मोनोसैचराइड। Monosaccharides are further classified on the basis of the number of carbon atom and the functional group inside them। If monosaccharide contains aldehyde group, that is called aldose, and keto group, that is known as ketose। तो aldose and ketose, the number of carbon and अगर aldehyde group है मोनोसैचराइड में तो वो aldose होगा, और कीटोनिक ग्रुप है तो उसे हम कीटोस कहेंगे। नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इंक्लूडिंग द क्लासिफाइंग द कंपाउंड इज एन एविडेंट। फॉर एग्जांपल अगर टेबल है, अगर 3 होगा तो अल्डो ट्रायोस, अगर अल्डोस होगा तो, और कीटोस होगा तो कीटो ट्रायोस। यहां पर 4 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हो गए तो अल्डो पेंटोस और वहां पर कीटो पेंटोस, ये कॉमन नेम। अल्डो एक्सोस को कहते हैं हम ग्लूकोज, अल्डो ट्रायोस को कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, अल्टो पेंटोस कहते हैं जाइलोज, है ना, अल्टो टेट्रोस को कहते हैं अर्थ्रोस। ओके, तो ये कॉमन नेम्स है। अल्डो हेप्टोस का कीटोस, अगर कीटो ग्रुप हो तो कीटो हेप्टोस। द नेक्स्ट इज अ डाइसैचराइड, कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच गिव 2 मोनोसैचराइड मॉलिक्यूल्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड डाइसैचराइड। दोनों 2 मोनोसैचराइड्स साथ में जुड़े हुए होंगे, ऐसा कंपाउंड देंगे। The sucrose, maltose, lactose etc. are the disaccharides। Next is oligosaccharides, the carbohydrate that yields 2 to 10 molecules। अगर एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा और एक कंपाउंड मिला, एक यूनिट मिली, तो हम कहेंगे मोनोसैचराइड। अगर 2 यूनिट मिली तो हम कहेंगे डाइसैचराइड। अगर 2 से 10 मॉलिक्यूल्स साथ में जॉइंट हुए मिले तो उसे हम कहेंगे ओलिगोसैचराइड, और 10 से भी ज्यादा अगर साथ हुए तो उसे हम कहेंगे पॉलीसैचराइड। जिसका एग्जांपल हो जाता है पॉलीसैचराइड का, देखिए कार्बोहाइड्रेट लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैचराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, दैट इज स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैचराइड ऐसा होता है। ओके, यहां पर बीच में कार्बन OH, H, CH2H एंड CHO, ये हो गया
aldose group. Although the large number of monosaccharides found in nature, D or L before the name of monosaccharide indicates that the configuration of particular stereoisomer. Various stereoisomers are assigned relative configuration, जो D and L configuration. C2H5 के अगर राइट साइड हो तो उसे हम D configuration कहेंगे, C2H5 के अगर लेफ्ट साइड हो तो उसे हम L configuration कहेंगे. ओके, तो ये कहते हैं enantiomers कहते हैं. ओके, all these compounds which correlated plus basal D are said to be have D configuration and minus basal D are said to be L configuration. In monosaccharides it is the lowest asymmetrical carbon जो कि हो गया CH2H, उसके राइट साइड पर होगा तो D and लेफ्ट साइड पर होगा तो L. वो ही दिया गया ये होगा D सैचुरेट CH2H के राइट साइड पर है, दैट्स वाई D. CH2H के राइट साइड पर है, दैट्स वाई D. CH2H के लेफ्ट साइड पर है तो L और लेफ्ट साइड तो L. D ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हो जाता है हमारा C6H6. ओके, C6H12O6. यहाँ पर देख आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन और 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन C6H12O6. तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि ग्लूकोज में जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर कार्बन हाइड्रोजन इस साइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अदर साइड, बाकी सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड है आपके, सिर्फ जो थर्ड वाला कार्बन है उसके ऊपर लेफ्ट साइड पर है. ओके, ऐसे आपको याद रखना है. दिस मोनोसैचराइड रियली एग्जिस्ट इन द साइक्लिक कंपाउंड रिंग. ये तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो गया, यही कंपाउंड आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी दिखते हैं, जिसमें ये O है वो यहाँ पर ये OH के साथ यहाँ पर लिंक रहता है, जिसकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बनता है. तो ये भी स्ट्रक्चर आपको याद रखना है. O HOH थर्ड कार्बन आया तो ऊपर H, ऊपर OH, अंदर है बाहर H, OH HOH और यहाँ पर CH2H5OH. ओके, तो यहाँ पर सेम सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर और स्ट्रेट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है ग्लूकोज का. अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आर फॉर्म ऑफ अदर सुडो एक्सटेंड साइक्लिक फॉर्म. जैसे वहां पर DL था, यहाँ पर अल्फा बीटा है. ओके, डी राइबोज फॉर्म्स 5 मेंबर, मींस यहाँ पर अल्फा डी मींस जो कि डी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अल्फा होगा, जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के बाजू वाला कार्बन है उसके ऊपर H ऊपर और OH नीचे हुआ तो उसे हम अल्फा कहेंगे, और अगर OH ऊपर हुआ और H नीचे हुआ तो उसे हम बीटा कहेंगे. ये आपको ऐसे याद ही रखना होगा. स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैचराइड जो कि होगा उसमें यहाँ पर मान लो कि दो मोनोसैचराइड है तो यहाँ पर HOH है तो यहाँ से H2O निकालकर ग्लाइकोसिलिक लिंकेज फॉर्म है. आपको याद रखना है कि दो मोनोसैचराइड के बीच में अगर ग्लाइकोसिलिक लिंकेज फॉर्म हुआ है तो वो डाइसैचराइड फॉर्म होगा. तो इसे याद रखना है ग्लाइकोसिलिक लिंकेज. तो ये स्ट्रक्चर होगा माल्टोज का, जिसमें अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज देता है माल्टोज. सिमिलरली सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज. यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है जो कि देता है सुक्रोज. लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क formed by joining one molecule of glucose and one molecule of galactose. ये glucose and galactose. Okay, sorry, galactose and glucose के बना होता है lactose. तो आपको याद रखना है कि कौन से मोनोसैचराइड मिलाकर डाइसैचराइड फॉर्म होता है. If large amount of monosaccharide units are joined together, we get a polysaccharide. बहुत सारे मोनोसैचराइड को साथ में join कर दिया तो हमें मिल गया polysaccharide. They are the most common carbohydrate found in nature. They have mainly one of the following two, either food material or structural material. The starch is main food storage polysaccharide in plant, as we noted. The polymer of alpha glucose is consist of two chains, that is amylose and amylopectin. यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनकी दो चेन होती है, चेन पॉलीसैचराइड्स होते हैं तो उनकी दो चेन होती है, that is amylose and amylopectin. The amylose is a water soluble fraction of starch and is a liner polymer of alpha D glucose. On the other hand, amylopectin is a water insoluble fraction and consists of branched chain alpha D glucose. Okay, same cellulose जो कि हो गया वो स्ट्रक्चर के लिए है. It is a main component of wood and
other plant material, it consists of long chain of beta-D groups. आपको सारे एग्जांपल्स कौन से बने हैं वो याद रखने हैं जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की ग्रुप आएगी.